ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিৰোধীৰ ঐক্য বা মিত্ৰতা ভংগ কৰি আম আদমি পাৰ্টিয়ে অসমত নিজাববীয়াকৈ তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰ ভিতৰতে আছিল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি। আৰু ইতিমধ্যে আপ অসমৰ তৰফৰ পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এই সংবাদমেল যোগে জনাইছে যে গুৱাহাটীৰ যি লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী আছিল সেই প্ৰাৰ্থীত্ব ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টি। আৰু সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ লগতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টি। আৰু সংবাদমেল সম্বোধন কৰি APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে APCC সভাপতি ভূপেন বৰাই আপৰ প্ৰাৰ্থীসকলক পলুভৰণ দি কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ পিছতেই উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটীৰ যি প্ৰাৰ্থী আছিল সেই প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰা হৈছে বা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আপে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব এই কথা ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত ডাঙৰ খবৰ যে গুৱাহাটী প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিয়ে। ডিব্ৰুগড় সমষ্টি প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰত্যাহাৰ নকৰে আম আদমি পাৰ্টিয়ে, এই কথা জনাইছে সংবাদমেল যোগে। লগতে শোণিতপুৰতো নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিব আম আদমি পাৰ্টি। আৰু ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আপৰ নেতা মনোজ ধানোৱাৰে। শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী হৈ থাকিব ঋষিৰাজ কন্দিন্য। আৰু গুৱাহাটীত নিৰ্বাচন নেখেলে এতিয়া ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে। যিহেতু পূৰ্বে উল্লেখ কৰা হৈছিল যে গুৱাহাটীত ভৱেন চৌধুৰীয়ে নিৰ্বাচন খেলিব। 2024 আকৌ একেলগে বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা প্ৰস্তাৱ দিছে APCC বা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক। আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিয়ে। এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত ডাঙৰ খবৰ যে ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আপে। গুৱাহাটীত নিৰ্বাচন নেখেলে বা প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় সমষ্টি প্ৰাৰ্থী হৈ থাকিব এতিয়া মনোজ ধানোৱাৰ। আৰু লগতে শোণিতপুৰতো নিৰ্বাচনৰ যুঁজত নামিব আম আদমি পাৰ্টিৰ। এটা ডাঙৰ খবৰ যে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মনোজ ধানোৱাৰে আৰু মনোজ ধানোৱাৰে। শোণিতপুৰত আপৰ প্ৰাৰ্থী হৈ থাকিব ঋষিৰাজ কন্দিন্য। আৰু গুৱাহাটীত এতিয়া নিৰ্বাচন নেখেলে ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে। 2024 একেলগে বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে এনেদৰে এতিয়া আপে পুনৰবাৰ। কিন্তু সমান্তৰালকৈ ভূপেন বৰাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বা বিৰোধী নেতাই ভূপেন বৰাই বিশেষকৈ ভূপেন বৰাই প্ৰলোভন দিছে, ফোন কৰি কৰি প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰলোভন দিছে, সেই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অৰ্থাৎ আপৰ প্ৰাৰ্থীসকলক কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ এনেদৰে বিৰোধী ঐক্যৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰি আম আদমি পাৰ্টিয়ে পুনৰবাৰ বিৰোধী ঐক্যৰ মঞ্চৰ বিৰুদ্ধে মহা বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ যি প্ৰাৰ্থী বা নাম ঘোষণা কৰা হৈছিল আপে তিনিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল পোনপ্ৰথমে। আৰু তাৰ পিছতেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি বৰ্তমান গুৱাহাটীত আপে নিৰ্বাচন নেখেলে, অৰ্থাৎ ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে নিৰ্বাচন নেখেলে বা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে, এই কথা সংবাদমেল যোগে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সংবাদমেলৰ সেই কিছু ক্ৰিয়দাংশ এই মুহূৰ্তত শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। हम सर्वोच्च त्याग कह सकते हैं, सर्वोच्च बलिदान कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी गुवाहाटी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन साथ के साथ हम कांग्रेस को ये चुनौती देते हैं कि अगर वो लोग विपक्षी एकता के पक्ष में हैं और कांग्रेस के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को सही में हराना चाहते हैं तो वो डिब्रूगढ़ और सोनीतपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले। आम आदमी पार्टी इस बार गुवाहाटी लोकसभा सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी। सोनीतपुर और डिब्रूगढ़ में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के लोग अगर हमारी ये चुनौती नहीं स्वीकार करते हैं, वो सोनीतपुर और डिब्रूगढ़ सीट को नहीं छोड़ते हैं, तो इसका मतलब साफ होगा कि कहीं ना कहीं वो लोग भाजपा को सहायता करने के लिए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बीजेपी को सहायता करने के लिए। अभी मैं जो बात कहने जाऊंगा उसे सुनकर आप निश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे कि विपक्षी एकता के नाम पर एक तरफ हम मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के सभापति भूपेन बोरा जी हमारे बहुत सोनीतपुर के और डिब्रूगढ़ के हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको फ़ोन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनको प्रलोभन दे रहे हैं। तो ये कैसा विपक्षी एकता है? आप एक तरफ हमारे कैंडिडेट को कह रहे हो कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, आप हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि विरोधी ऐक्य है। तो कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीका है। हिमंत बिश्व शर्मा जी बार बार कहते हैं कि असम कांग्रेस में तो हमारे ही लोग हैं, असम कांग्रेस में तो जो कुछ है हम चलाते हैं। बहुत बार ऐसे
मैसेज आए हैं, ऐसी सूचनाएं, ऐसी बातें हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कही है। तो अभी तक तो हमें संदेह होता था, लेकिन कांग्रेस के इन क्रियाकलापों को देखकर अब हमें ऐसा लगता है कि क्या असम की जनता को सोचना चाहिए कि इसमें क्या कोई शक की गुंजाइश है अब, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को तोड़ा जाए। यहाँ तक कि कल रात तक भी हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन हमारे लोग बिकाऊ नहीं हैं। कांग्रेस के नेता जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे नहीं हैं। इसका मतलब साफ है कि जो डिब्रूगढ़ और सोनितपुर की सीट में हमारे जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार काफ़ी मजबूत हैं और कांग्रेस या विपक्ष के दूसरे दलों के पास उनके समान कोई चेहरा नहीं है, वैसे उम्मीदवार नहीं है। इसलिए कांग्रेस को ये 2 सीटें आम आदमी पार्टी को छोड़ देना चाहिए था, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कई लोगों ने हमें बताया कि कांग्रेस का मकसद बीजेपी को हराना नहीं है, उनका मकसद है कि आम आदमी पार्टी असम में अपना एक भी सीट ना जीत पाए। पहले ये हमें शक था, धीरे धीरे ये हमारा शक और भी पुख्ता हो जा रहा है। आज हम असम की जनता को बताना चाहते हैं कि अब आप तय कीजिए कि कौन लोग विपक्षी एकता के पक्ष में हैं और कौन नहीं, कौन देश के संविधान को बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए संकल्पबद्ध है, कौन बीजेपी को हराने के लिए अपना बलिदान दे सकता है और किन्हें सिर्फ अपने स्वार्थों की चिंता है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, जो हमारी राजनीतिक परिक्रमा समिति है, जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसे हम सर्वोच्च त्याग कह सकते हैं, सर्वोच्च बलिदान कह सकते हैं, कि आम आदमी पार्टी गुवाहाटी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ हम कांग्रेस को ये चुनौती देते हैं कि अगर वो लोग विपक्षी एकता के पक्ष में हैं और कांग्रेस के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को सही में हराना चाहते हैं, तो वो डिब्रूगढ़ और सोनितपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले। आम आदमी पार्टी इस बार गुवाहाटी लोकसभा सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी। सोनितपुर और डिब्रूगढ़ में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के लोग अगर हमारी ये चुनौती नहीं स्वीकार करते हैं, वो सोनितपुर और डिब्रूगढ़ सीट को नहीं छोड़ते हैं, तो इसका मतलब साफ होगा कि कहीं ना कहीं वो लोग भाजपा को सहायता करने के लिए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बीजेपी को सहायता करने के लिए। हम सर्वोच्च त्याग कह सकते हैं, सर्वोच्च बलिदान कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी गुवाहाटी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ हम कांग्रेस को ये चुनौती देते हैं कि अगर वो लोग विपक्षी एकता के पक्ष में हैं और कांग्रेस के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को सही में हराना चाहते हैं, तो वो डिब्रूगढ़ और सोनितपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले। आम आदमी पार्टी इस बार गुवाहाटी लोकसभा सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी। सोनितपुर और डिब्रूगढ़ में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के लोग अगर हमारी ये चुनौती नहीं स्वीकार करते हैं, वो सोनितपुर और डिब्रूगढ़ सीट को नहीं छोड़ते हैं, तो इसका मतलब साफ होगा कि कहीं ना कहीं वो लोग भाजपा को सहायता करने के लिए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बीजेपी को सहायता करने के लिए। अभी मैं जो बात कहने जाऊंगा उसे सुनकर आप निश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे कि विपक्षी एकता के नाम पर एक तरफ हम मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के सभापति भूपेन बोरा जी हमारे बहुत सोनितपुर के और डिब्रूगढ़ के हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको फ़ोन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनको प्रलोभन दे रहे हैं। तो ये कैसा विपक्षी एकता है? आप एक तरफ हमारे कैंडिडेट को कह रहे हो कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, आप हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि विरोधी ऐक्य है। तो कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीका है। हिमंत बिश्व शर्मा जी बार बार कहते हैं कि असम कांग्रेस में तो हमारे ही लोग हैं, असम कांग्रेस में तो जो कुछ है हम चलाते हैं। बहुत बार ऐसे मैसेज आए हैं, ऐसी सूचनाएं, ऐसी बातें हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कही है। तो अभी तक तो हमें संदेह होता था, लेकिन कांग्रेस के इन क्रियाकलापों को देखकर अब हमें ऐसा लगता है कि क्या असम की जनता को सोचना चाहिए कि इसमें क्या कोई शक की गुंजाइश है अब, क्योंकि
इन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को तोड़ा जाए। यहाँ तक कि कल रात तक भी हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन हमारे लोग बिकाऊ नहीं हैं। कांग्रेस के नेता जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे नहीं हैं। इसका मतलब साफ है कि जो डिब्रूगढ़ और सोनितपुर की सीट में हमारे जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार काफ़ी मजबूत हैं और कांग्रेस या विपक्ष के दूसरे दलों के पास उनके समान कोई चेहरा नहीं है, वैसे उम्मीदवार नहीं है। इसलिए कांग्रेस को ये 2 सीटें आम आदमी पार्टी को छोड़ देना चाहिए था, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कई लोगों ने हमें बताया कि कांग्रेस का मकसद बीजेपी को हराना नहीं है। उनका मकसद है कि आम आदमी पार्टी असम में अपना एक भी सीट ना जीत पाए। पहले ये हमें शक था, धीरे धीरे ये हमारा शक और भी पुख्ता हो जा रहा है। आज हम असम की जनता को बताना चाहते हैं कि अब आप तय कीजिए कि कौन लोग विपक्षी एकता के पक्ष में हैं और कौन नहीं। कौन देश के संविधान को बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए संकल्पबद्ध है, कौन बीजेपी को हराने के लिए अपना बलिदान दे सकता है और किन्हें सिर्फ अपने स्वार्थों की चिंता है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, जो हमारी राजनीतिक परिक्रमा समिति है, जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसे हम सर्वोच्च त्याग कह सकते हैं, सर्वोच्च बलिदान कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी गुवाहाटी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन साथ के साथ हम कांग्रेस को ये चुनौती देते हैं कि अगर वो लोग विपक्षी एकता के पक्ष में हैं और कांग्रेस के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को सही में हराना चाहते हैं तो वो डिब्रूगढ़ और सोनितपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले। आम आदमी पार्टी इस बार गुवाहाटी लोकसभा सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी। सोनितपुर और डिब्रूगढ़ में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के लोग अगर हमारी ये चुनाव